नाज़रीन की खिदमत में सलाम और आदाब। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल ने आज सेव लाइफ एंड केयर एजुकेशनल ट्रस्ट नामी गैर सरकारी तंजीम के इश्तिराक से आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और इससे मुताल्लिक़ चैलेंजों से आगाह कराना था। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर करगिल संतोष सुखदेव बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान डिग्री कॉलेज करगिल के तलबा ने माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत और दुनिया को पेश आ रहे ख़तरात से आगाह किया। प्रोग्राम के दौरान इंचार्ज प्रिंसिपल के अलावा इन्वायरमेंट साइंस के प्रोफेसर सज्जाद हुसैन और सेव लाइफ एंड केयर एजुकेशनल ट्रस्ट नामी तंजीम के चेयरमैन एडवोकेट तालिब हुसैन ने भी खिताब किया। इस दौरान इन्वायरमेंट साइंस के तलबा ने माहौलियात से मुताल्लिक़ पोस्टर एंड मॉडल प्रेजेंटेशन भी पेश की। पेश खिदमत है हसन इबादी की ये तफसीली रिपोर्ट। A very pleasant morning to all of you. It's a matter of great honor to stand in front of the galaxy of intellectuals that we have today and to welcome them on behalf of Ms. Amina Kari, Principal Government Modern Degree College, Kargil, in absentia. Sir, we welcome you from the depth of our heart to this occasion, as we all know that the United Nations Environment leads the observance of World Environment Day. The theme for the World Environment Day this year is Only One Earth, with a focus on living sustainably in harmony with nature. The basic necessity of human is food, clothes and shelter, and we should be saying thanks all over again to the environment for blessing us with these qualities. To begin the program, I would end this welcome speech by a quote. If you love to breathe, save the trees. Save the earth, save yourself. मैं डरती हूँ, मुझे जीने दो, मुझे मेरे हाल में जीने दो। मेरा नाम ज़मीन, अमीन हूँ मैं, सब नस्लों की, सब फसलों की। मेरी ममता जागती रहती है, मेरी कोख में सदियाँ पलती हैं। मेरी ममता जागती रहती है, मेरी कोख में सदियाँ पलती हैं। मेरे होने से तुम होते हो, मेरे जीने से तुम जीते हो। मैं डरती हूँ, मुझे जीने दो, मुझे मेरे हाल में जीने दो। The principle of environmental justice says that access to clean air, water and soil and to a healthy, safe, livable community are intrinsic human rights. Renewable resources are energy sources that cannot be depleted and are able to supply a continuous source of clean energy. Geothermal power is a form of renewable energy created by powering electrical generator with the heat of the earth. I am pleased to invite our Professor, Department of Environmental Science, Mr. Sajjad Hussain, so to please take over for the program, please. Thank you, sir. So purpose is to work on the ground level actually, so that individual level responsibilities towards the nature can be solved. This is the motto and goal of the purpose of this organizing event, sir. And program like this, we have made a number of coordinated drugs and plantations for it. And after conclusion of the program here on it will not be confined to the four walls of this auditorium or the college. After completion of the program, sir, with the permission, we have already saw permission and we are granted permission for taking a rally outside. And the purpose and motive of this rally to be there will be a cleanliness drive and to depart and inculcate what we individuals are supposed to play our role towards the environment. And in fact, we are intentionally or unintentionally damaging the environment, and the people actually who are unintentionally deteriorating the quality of the environment. हमारे लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीजें करते हैं हम उससे भी एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और हम उसको रियलाइज ना करते हुए करते जाते हैं सारी चीजें। जैसा कि पहले भी बताया गया था
एक तो हम प्लास्टिक यूज करना इमीडिएटली बंद कर सकते, कोई जरूरत है नहीं उस चीज की, बट हम करते नहीं बिकॉज हमें आसान लगता है यूज करना और आदत पड़ जाती है उन चीजों की। तो एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पानी के बारे में बोलूंगा। आप इस साल जानते हो जैसे लास्ट ईयर में आया था, लास्ट ईयर काफी स्नोफॉल था, इस साल बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं है। बहुत सारे विलेजेस में आपके अलग अलग गांव से आते हुए यहाँ पे आपके यहाँ पे पानी की शॉर्टेज होगी, स्पेशली इरिगेशन रिलेटेड वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की भी कुछ एरियाज में। और जिस हिसाब से हमारा एनवायरमेंट चेंज होते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और इतने सारे इफेक्ट होते जा रहे हैं, तो आने वाले समय में भी यहाँ पे गुजारा करना टफ होते जाएगा अनलेस एंड अंटिल वी डू समथिंग अबाउट इट। तो हमें सोचना पड़ेगा कि स्पेशली लद्दाख के लिए, बिकॉज यहाँ पे सोर्सेज ग्लेशियर में वाटर की स्प्रिंग सोर्सेज और रिवर वाटर सोर्सेज है आपके पास में, रेनफॉल तो होता नहीं जैसे प्लेन्स में होता है। तो आपको भी स्पेशली यूथ को सोचना पड़ेगा कि हमें किस टाइप से लाइफस्टाइल जीनी है, किस टाइप से कुछ चेंजेस करने होंगे हमारे दिन ब दिन की लाइफ में, बिकॉज आने वाला समय आपके लिए बड़ा टफ होते जाएगा। जिनकी एज होती जा रही है तो उनका तो अलग बात है, बिकॉज आगे जिंदगी तो आप लोगों को इधर ही जीनी है। यहाँ से सारी की सारी पॉपुलेशन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते, रिसेटल नहीं कर सकते। तो आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे चीजें करनी है, क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए जिस वजह से आने वाली लाइफ आप लोगों के लिए टफ ना हो। Mr. Ira, Madam in charge, Principal Degree College Kargil, other assistant professors, Mr. Sajjad, Sir, Assistant Professor in Material Science, our most valued invested guests, ladies and gentlemen, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of Save Life and Care Education Trust and entire team of Government Degree College Kargil, and on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to all speakers for gracing this program for celebration of World Environment Day. I must mention our deep sense of appreciation for Mr. Santosh Singh Sudev as for gracing this occasion and enlightening the audience with his magical words in today's topic and guidance to the dear students. Further, we are grateful to the students, Archo Kanis, Mahmuda Banu, Bilkis Banu, Khadija Banu, for speaking so eloquently, enlightening the audience with facts and figures of today's program. The Save Life and Care Education Trust is a product of enthusiasm of youngsters of my village Kharbu, who in order to render service to humanity and to serve the people, established this trust. The trust is a voluntary organization, has been functioning from 2020. I, on behalf of the organization, will thank the Principal Madam and in charge Principal Madam for considering my proposal for organizing such a wonderful program, and to Mr. Sajjad Hussain for organizing this program, and to all his enthusiastic students who have worked hard for making this program successful. These the students have really worked hard. I really appreciate, dear students, when you leave this college, these will be the days you will be cherishing all your life. Just I was saying to Santosh sir that these are the days, the activities you do. पढ़ाई तो जिंदगी भर करते रहता है, that's not really. But these curricular activities that you do, you will cherish all your life. That these things will remain in your memory forever. So I was very pleased, I was very happy to see that how enthusiastic the students were, how they participated. Yesterday, Sunday, students came over here, decorated the rooms. It was really very interesting, very touching, and I felt very happy to have been associated with you, such young people who are so enthusiastic and ready to work. That's very important. Voluntarily working. One thing is that when you are being paid for some work or when you are being paid, that you have to do. Other thing is voluntarily doing something out of no payment, out of no regard. That's where that matters. And this is the time when you will, as a student, will be working voluntarily, and if you can inculcate this aspect in your personality, it will remain with you throughout your life. So I was very happy yesterday seeing this enthusiasm of students and how they
were so happy and to do volunteer work. Well, ladies and gentlemen, an event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated college and students of Mr. Sajjad Hussain, Professor in Environmental Science, who knows his job and result oriented. I like to express my sincere thanks to all the media persons who are over here. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zone. Before completing this vote of thanks, I would like to quote today, for reference to today's program, I would like to quote one saying of Mahatma Gandhi, because it sums up all our troubles we are facing due to this environmental degradation. That is, Earth provides enough to satisfy every man's need. There are just everything that a man needs, but not every man's greed. It does not have, it cannot provide to cater to every man's greed, and that's the problem we are facing, because the modern world, due to corporate greed and due to individual greed and things, we have reached a point, I think a tipping point, where returning from here will be nearly impossible. So this quotation of Mahatma Gandhi sums up all our miseries right now. I would like to thank all the known and unknown hands that contributed to the success of this program. Once again, thanking you, one and all, and take your leave with grateful heart. Thank you very much. आज जैसे कि आप जानते हैं 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, उसके लिए जीडीसी करगिल ने इन कोलैबोरेशन विद सेव लाइफ एंड केयर एजुकेशन ट्रस्ट के साथ मिलके यहाँ पे उसको सेलिब्रेट किया है। इसमें प्लांटेशन ड्राइव रखा गया था और अलग अलग लोगों की स्पीच रखी गई थी, स्टूडेंट्स की तरफ से भी स्पीचेस रखी गई थी जिसमें एनवायरनमेंट के महत्व को बताया गया था। आपने जो पूछा प्लास्टिक का और वाटर का, यहाँ पे जैसे आप जानते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक वैसे ही बैंड है पूरे लद्दाख में, तो उसको तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट दूर दराज के एरियाज़ में अभी तक शायद लोगों को पता नहीं इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज टाउन एरिया में तो हम इम्प्लीमेंट करके उसको इन्फोर्स करते हैं, बट बाहर के एरियाज़ में भी उस मैसेज तक को पहुँचाना है। दूसरा, पानी को लेके आप जानते हैं पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है पूरे लद्दाख रीजन में। हम तो उसको कोशिश कर रहे हैं सॉर्ट आउट करने का, सॉल्व करने का, सोलर लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू हो या फिर पीने के पानी का जल जीवन मिशन के थ्रू हो, बट इसमें साथ में लोगों को भी मिलना होगा सो दैट अनवांटेड वेस्टेज जो है वाटर का वो कम किया जाए, और साथ ही में वो अपने लेवल पे वाटर को कंजर्व करे, छोटे से पिट बना के हो या फिर टैंक्स बना के हो, जो कि ट्रेडिशनल वे रहा है वाटर कंजर्व करने का। तो ये सारे मैसेज थे सो दैट ये और हमने अपील भी की है स्टूडेंट्स के साथ में कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में ही अपने विलेज लेवल तक या फिर अपने मोहल्ले तक इस मैसेज को पहुँचाए सो दैट सभी लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चले। सर, ज़िले के आवाम को ख़ासकर जो दूर दराज के लोग हैं उनको एनवायरनमेंट के बारे में ख़ास मतलब जानकारी नहीं है, उनको अहमियत पता नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस सिलसिले में क्या कोशिशें करेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में क्या इस किस्म के प्रोग्राम मुनक़्क़िद करेंगे? हमको लगता है लोगों को पता है, बट ट्रेडिशनल वे जो होता है लोगों को हमसे ज़्यादा बेहतर पता है साइंटिफिक वे के बारे में ना, बट वही है कि धीरे धीरे लोग ट्रेडिशनल वे को भूलते जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को ट्रेडिशनल जो चीज़ें रही है पहले से, ऑब्वियसली इतने सालों से लोग अगर यहाँ पे रहे तो कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, तो ट्रेडिशनल नॉलेज को हमको प्रिजर्व करना है और उसको साथ में साइंटिफिक चीज़ों के साथ ब्लेंड करना है सो दैट जो अभी कमिंग हमारा 21st सेंचुरी उस नॉलेज को उसमें यूज़ किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ऑब्वियसली हम पंचायत के थ्रू हो या फिर हमारे BDCs के थ्रू इस मैसेज को और विलेज लेवल तक, गाँव लेवल तक पहुँचाएंगे सो दैट लोगों को एक नए चीज़ों के बारे में पता हो, उनकी अवेयरनेस भी हो और वो अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को कंजर्व भी करें। सर, प्लास्टिक पर पाबंदी, मुकम्मल पाबंदी के लिए क्या कोशिशें करेंगे और क्या इक़दाम लेंगे? प्लास्टिक पे हम फ़ाइन लगा, जैसे मैंने कहा कि म्यूनसिपल एरियाज़ में इन्फोर्स करना बड़ा आसान होता है बिकॉज यहाँ पे टीम्स होती है, मैन पावर होती है, बट विलेज लेवल पे क्योंकि यहाँ पे गांव दूर दराज पे है तो हमने पंचायतों को भी कहा है और हम अपने ऑफिसर्स को भी कहेंगे कि उसको विलेज लेवल तक भी इन्फोर्स किए सो दैट जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिससे पोल्यूशन भी होता है और हार्मफुल भी एनवायरनमेंट के लिए, उसका यूसेज कम हो। करगिल सनस्कार नेशनल हाईवे पर जो इसकी तोसी के दौरान तकरीबन 40,000 दरख्त काटे जा रहे हैं, तो इसकी भरपाई के लिए क्या इक़दाम होना है? जी, अब
किसी भी डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है। अब आप भी आपने भी न्यूज़ बनाई होगी कि यहाँ पे इतने सारे पेड़ कट रहे हैं, बट उसकी एवज में हम ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल अमाउंट में प्लांटेशन करेंगे यहाँ पे, सो दैट जो लॉस हो रहा है एनवायरनमेंट का वो हम उसकी भरपाई करें। तो ऐसी स्पीशीज़ भी लगाएंगे जो जल्दी से ग्रो भी करे, और सो दैट और भी एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया की तरह डेवलप हो यहाँ पे, सो दैट जो इफेक्ट होगा इस एनवायरनमेंट को मिनिमाइज़ किया जाए। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम फायज़ा नाज है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ। आज का जो डे है हम एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसका जो इम्पोर्टेंट है ये कोई एक स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं है कि बस इन्होंने सेलिब्रेट करना है या ऑब्जर्व करना है। दिस इज़ फॉर एवरीवन, बिकॉज हर कोई जो है इन्वायरमेंट इज़ सभी का है इन्वायरमेंट, ठीक है। सो ये हमारा घर है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है ये आज के टाइम पे और ज़्यादा इसलिए है मैं समझती हूँ, बिकॉज एज ए स्टूडेंट ऑल्सो, स्टूडेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस ऑल्सो, हम ये देख रहे हैं और हम ये जानते हैं कि कितना ज़्यादा आजकल इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, कितना पोल्यूशन हर जगह क्रिएट हो रहा है, और हर तरह से इन्वायरमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो इसका अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, स्पेशली इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे मास होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना, तो ये मेरे लिए मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज अगर यहाँ पे हम कुछ सीख रहे हैं या हमें कुछ बताया जाता है तो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल लद्दाख रीजन या करगिल की मैं बात करूँ तो डिफरेंट विलेजेस से लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, तो कुछ हम सीखेंगे तो हम आगे जाके अपने विलेज में बताएंगे कि दिस इज़ वाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, और एनवायरनमेंट सेव करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली ह्यूमंस के लिए, अल्टीमेटली हमारी लाइफ के लिए एनवायरनमेंट सेव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये आज के डे का ये इम्पोर्टेंस। आज on 5th जून एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड एनवायरनमेंट मनाया जाता है। आज 6 जून को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में सेफ लाइफ एंड केयर एजुकेशन ट्रस्ट करगिल की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद डिग्री कॉलेज करगिल हमने ये एनवायरनमेंट डे बनाया है। आज ये है कि सेव लाइफ एंड केयर एजुकेशन ट्रस्ट हमारे खरबुक विलेज के जो जवानान थे उनकी एक कोशिश है, उनकी एक एंथुसियाज्म, उनका एक अपने माहौल के तहत, अपने एक समाज, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके लिए एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के एंथुसियाज्म और वॉलंटरी जो एक सोसाइटी में अपना काम करने के लिए ये सोसाइटी, ये ट्रस्ट बनाया गया है। इसमें हमारे यहाँ इलाके से सारे जवानान जो हैं ये सारे इसमें शामिल हैं, बिला किसी तफरीक के, बिला हर किसी मज़हब से, हर जगह से लोग, जवान तबके के लोग हैं इसमें शामिल हैं। उनकी ये ख्वाहिश थी कि भाई हम कंट्रीब्यूशन करें, हम कैसे हम अपने आप को, अपने का माहौल को, अपनी सोसाइटी को कैसे करें। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे ये कहा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए आप वॉलंटरीली पूरे लोगों की खदमत कर सकें, तो उस जज्बे से ये बनाया गया। आज मैंने प्रपोज़ किया था सजाद साहब और मैडम प्रिंसिपल सर को कि ये प्रोग्राम जो है इन कोलैबोरेशन विद हमारी सोसाइटी के साथ मनाएंगे। इन्होंने एक्सेप्ट किया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब संतोष सिंह साहब ने, सुदेव साहब ने यहाँ आए, इस फंक्शन में आए। इन्होंने अपना बिजी शेड्यूल निकाल के इन बच्चों के बीच में अपने ख्यालात का इजहार किया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने बिजी शेड्यूल से निकाल के यहाँ आए और बच्चों को अपने ज़हीन ख्यालात से नवाजा, हमारी भी इज्जत अफजाई की, हमारे काम की उन्होंने सताइश की, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं बच्चों के, इन्होंने बहुत मेहनत किया इस प्रोग्राम को करने के लिए, कई दिनों से ये मेहनत कर रहे थे। इनका बहुत शुक्रगुजार है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में जिन्होंने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया, और इस प्रोग्राम को और सजाद साहब जिन्होंने इसको थीम दिया, कंसेप्ट दिया, और इन एंथुसियास्टिक जो जवानान हैं इनकी फ़ौज को ये लीड कर रहे हैं। और इनके जैसे ये इस डिग्री कॉलेज में जिस हिसाब से पिछले 2 साल से 3 साल से मैं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही है, आई सी ए ग्रेट फ्यूचर फॉर करगिल, खासकर एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। और सजाद साहब, मैडम अमीना हैं, बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, इनकी क़यादत में अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंशाअल्लाह करगिल के जो एजुकेशन में बहुत तरक्की करेगा और आगे जाएगा। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। क्योंकि यकीनी बात है एनवायरनमेंट एक्चुअली नॉट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, एक्चुअली इट बिलोंग्स टू ऑल। इनफैक्ट जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, उन पे हमारा दारोमदार है।
हम ये ना सोचें कि अशरफुल मखलूक़ात है कि हम एक सुपीरियर क्वालिटी के मखलूक़ात है तो हमें कुछ नहीं होने वाला है। हमारा अगर दारोमदार देखा जाए, हमारा लाइवलीहुड अगर देखा जाए, सस्टेनेंस अगर देखा जाए तो उन्हीं ऑर्गेनिज़म्स और प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। और हम एनवायरनमेंट को कभी इंटेंशनली, जो ग्रीडी टाइप के लोग होते हैं, मेटलिस्टिक डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट का डिटेरियोरेशन करते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि कभी कभी हम अनइंटेंशनली चीज़ों को डैमेज करते हैं। लाइक मुझे अगर एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, वट एज एन इंडिविजुअल आई एम सपोज टू प्ले माई रोल एंड वट आई एम एक्चुअली प्लेइंग। सो ये चीज़ें डैमेजिंग है। तो हमारा पर्पस हमेशा रहता है कि इंडिविजुअल लेवल पे एक अवेयरनेस दिया जाए, इम्पार्ट किया जाए कि भाई वी आर आल्सो ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड वी एज एन इंडिविजुअल हैव टू प्ले आवर रोल। क्योंकि अगर हम सुपीरियर सो कॉल्ड सुपीरियर क्वालिटी के लोग हैं, इंसान जिसे हम कहते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा एक सुपीरियर रोल भी होना चाहिए टूवर्ड्स सेफ गार्डिंग, कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। सो पर्पस हमारा यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए। जब तक ना इंडिविजुअल लेवल पे हम अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट सर्व नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो फ्यूचर है वो कभी भी हमारा सेफ नहीं है। हम ये ना सोचें कि बच्चों को हम बहुत ज़्यादा कुछ मेटेरियलिस्टिक कंस्ट्रक्शन वगैरह चीज़ें करके देंगे, लेकिन कभी ये देखें कि हम इन बच्चों को एक सेफ़ एनवायरनमेंट के लिए देने के लिए हम क्या कर रहे हैं। इस चीज़ पे फोकस होने की ज़रूरत है। ओबियसली अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है हमें, अल्लाह ने आपको पैदा किया तो ओबियसली रिज़्क़ तो देगा, लेकिन ऐसे गांधी जी ने कहा है नेचर हैज़ अनफ टू सस्टेन एवरीवन बट नॉट टू फुलफिल फ्यू ग्रीडी वंस एक्चुअली। तो कुछ ग्रीडी लोगों का मन तो कभी नहीं भरेगा, इसलिए हम भी ये इस तरफ एक कॉन्सेप्चुलाइज करें लोगों को कि नहीं भाई, हम अपने बच्चों को अगर एक अच्छा मकान बना के दे रहे हैं तो हम अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट भी बना के देंगे ताकि हमारे बच्चे न सफ़र करें। तो पर्पस हमारा यही है कि लोगों को अवेयरनेस दिया जाए, इम्पार्ट किया जाए, डिसमिनेट किया जाए इन्फॉर्मेशन। क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है, ओबियसली यहाँ अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 गाँव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100 फैमिली मेम्बर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा और फास्ट वे मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग किसी भी टाइप का इन्फॉर्मेशन है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, स्टूडेंट मॉरली बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाते हैं। ओबियसली जब कोई ऐसा गेस्ट आ जाता है जो रियली एक डिग्निटरी हो, तो ओबियसली हमारे डीसी साहब यहाँ पे आए, हम उनके बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम दे दिया हमें जस्ट टू मॉरली बूस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, ताकि मॉरली अगर कहीं बूस्ट मिलती है तो ओबियसली वो फिर ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और साथ में हम NGO सेव लाइफ एंड केयर एजुकेशन ट्रस्ट के भी बहुत ही मशहूर हैं कि ये भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करके, ओबियसली एनवायरनमेंट बिलोंग्स टू ऑल, तो इनका भी अपना एक रोल बनता है। तो इन्होंने अपने रोल को समझा। मैसेज हमेशा यही रहता है कि क्योंकि एनवायरनमेंट बिलोंग टू ऑल का हमें ना, मैं यही कहूँगा क्योंकि हमारा जो लद्दाख है एक फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम जो हमारा लद्दाख का है ओबियसली बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। जैसे हमारे रिसीडिंग ग्लेशियर्स की बात करते हैं या जो डिक्लाइनिंग स्पीशीज़ की अगर बात करते हैं, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट के फॉर्म हो, चाहे हर्ब्स के फॉर्म में हो, चाहे वेस्कुलर प्लांट्स के फॉर्म में हो, बिकॉज ऑफ दिस आर डेड इफेक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ कोई डैमेज करेंगे एनवायरनमेंट को तो हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ग्लोबल इम्पैक्ट आपको एक सर्कुलेशन में कभी ना कभी आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा। इसलिए मेरा मैसेज हमेशा यही रहेगा कि कम से कम एक दिन में एक एनवायरमेंटली साउंड एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।